Hello dear students, welcome back and I hope you all are very fine. Today we will start our chapter Protein Structure and Engineering, the question discussion of this chapter. This chapter is also of 15 marks as that of our previous chapter. So again a good weightage chapter, and the questions which we will discuss today, you will find the questions in the blog link, and the blog link will be given in the description box. So let's start with the first question. The first question is, curd and whey are categorized as nutraceutical proteins. जो हमारे कर्ड और वे होते हैं उनको हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोटीन्स कहते हैं. Why? And this question is of 2 marks. As we have to describe the concept otherwise, so firstly we should know what is a nutraceutical protein. Nutraceutical word is formed with 2 words, that is nutrition plus pharmaceuticals. और हमें पता है कि फार्मास्यूटिकल वर्ड जब भी आता है दैट मीन्स इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज. सो हियर दे आर few proteins which also have the therapeutic values. तो यहां से हमें सबसे पहले क्लियर हो गया कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोटीन क्या है. नाउ द क्वेश्चन arises, why curd and whey are termed as the nutraceutical protein? So in our answer we can write these are termed as the nutraceutical proteins because they contain different types of, or we will say they contain good or the beneficial bacteria for our body. हम सबको पता है कि कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, and another point is they also contain essential amino acids. इसके अलावा जो वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल, द वे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिवेशन ऑफ अ ट्राइपेप्टाइड. एक ट्राइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड होता है जो 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, ग्लूटाथायोन. अगर हम वे का कंजप्शन करते हैं तो ये बॉडी में ग्लूटाथायोन का अमाउंट इंक्रीज कर देता है, एंड दिस tripeptide is responsible to act as a detoxicant. मीन्स ये टॉक्सिक चीजें बॉडी से रिमूव कर सकता है. और वे ऑल्सो हिस्से क्या दैट इट डिग्रेड्स जीनोबायोटिक्स. जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं? मैन मेड केमिकल्स. सो यहां से हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया है. But when we have to write the answer, we will say that curd and whey are termed as the good beneficial bacteria because they contain beneficial bacteria for our body. They contain essential amino acids. Moreover, whey is responsible for the elevation of the tripeptide, that is glutathione, which act as a detoxicant for our body. So now the next question is, what is in situ activation of chymotrypsinogen? तो जब हम इन सिटू एक्टिवेशन ऑफ कीमोट्रिप्सिनोजन की बात करते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि इन सिटू एक्टिवेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. इन situ activation होता है means the particular protein or the enzyme gets activated at its site of
एक्शन, जहां पर उसको अपना काम करना है वहीं पर ये जाकर एक्टिव होगी। जैसे हमें पता है जो हमारा एंजाइम है दैट इज सिक्रीटेड इन द ड्यूडेनियम, दिस पर्टिकुलर कीमोट्रिप्सिन की अगर हम बात करें, बट there is some confusion in the question, and the question is like this: what is the in situ activation of chymotrypsinogen, and explain how the correct folding of the enzyme leads to its proteolytic activity. So in situ activation जो है वो साइट ऑफ एक्शन है, और साइट ऑफ एक्शन की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ड्यूडेनियम से सीक्रेट होकर वो पेनक्रियाज में जाकर एक्टिवेट होता है। अब यहां पर क्या है कि कीमोट्रिप्सिनोजन जब बॉडी में सिक्रीट होता है तो देन इट इज इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, और जब भी इसको अपना प्रोटीलिटिक एक्टिविटी शो करनी होती है देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीमोट्रिप्सिन, एंड एग्जैक्टली इट इज टर्म्ड एज alpha chymotrypsin. And this conversion of chymotrypsinogen into alpha chymotrypsin is taken place with the help of another enzyme, that is trypsin. Trypsin की help से ये activity होती है, but this activity takes place only at the site of action, therefore it is termed as in situ activation. Explain how the correct folding of the enzyme chymotrypsin leads to its function as a proteolytic enzyme. तो यहां पर जो वर्ड्स है, सबसे पहला वर्ड है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम हमारे पास होता है, इट मीन्स दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू क्लीव द प्रोटीन, प्रोटीन पर यह एक्ट करता है। अब यहां पर है कि इसकी करेक्ट फोल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी एक्टिविटी के लिए। करेक्ट फोल्डिंग का क्या मतलब है, इन क्लास 11th हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो भी प्रोटीन होता है उसकी 3 और 4 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, कुछ प्रोटीन सिर्फ टर्शरी स्टेज तक जाते हैं, कुछ प्रोटीन क्वाटरनरी स्टेज तक जाते हैं। तो यहां पर होता है लीनियर अरेंजमेंट, आपका प्रोटीन बिल्कुल सीधा है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स है। यहां पर कुछ पॉइंट्स पे इसमें फोल्डिंग स्टार्ट होती है, और जब वो एक्टिवली फोल्ड होता है दैट इज इन द क्वाटरनरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि इसकी करेक्ट फोल्डिंग इसकी एंजाइम एक्टिविटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक एंजाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना होगा कि एक एंजाइम की एक्टिविटी डिटरमिन करती है उसकी एक्टिव साइट, और जो कीमोट्रिप्सिन है जब एक्टिव हो जाता है, जब तक कीमोट्रिप्सिनोजन है तब तक वो जाइमोजन है, पर जब वो कीमोट्रिप्सिन बन जाता है तब इसकी 3 अमाइनो एसिड्स की एग्जैक्ट पोजीशन हमें याद रखनी है। One is histidine 57, another is serine 195, and third is aspartate 102. ये जो 3 अमाइनो एसिड्स है 57, 195 एंड 102, ये तीनों जब फोल्ड होता है प्रोटीन तब ये एक कैटालिटिक ट्रायड बनाते हैं, ये पास पास आ जाते हैं। कुछ इस तरह का प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लेट करते हैं कि जब ये अरेंज होता होगा तो यहाँ पर अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि एस्पार्टेट एक तरफ है, एस्पार्टेट का सिंबल हमारे पास डी है, सीरीन का सिंबल प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स में, एंड हिस्टिडीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। तो जो कैटालिटिक ट्रायड बनता है वो इस तरह से बनता है,
aspartate bonded with histidine and it finally bonds with serine. तो जब ये 3 अमाइनो एसिड्स 3D अरेंजमेंट में पास पास आ जाते हैं, देन दिस फॉर्म्स द एक्टिव साइट. और एक्टिव साइट वो होती है किसी भी एंजाइम की जो बाइंड करती है एग्जैक्टली सबस्ट्रेट से और एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है. तो यहां पर हमारे पास इसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपर डायग्राम हम देखेंगे. एस्पार्टेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इस तरह से. एक्चुअली एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर अगर हम याद करें तो वो होता है, इसके पास ऑक्सीजन की नेगेटिव प्रॉपर्टी होती है. दिस बॉन्ड्स विद हिस्टिडीन. हिस्टिडीन 57th पोजीशन पे है, ये 195th पोजीशन पे है. पर जब 3D अरेंजमेंट होता है तो ये अलग अलग तरीके से पास आ जाते हैं. यहां पर हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है इट बॉन्ड्स विद दिस हिस्टिडीन. यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है ये, और उस हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करने के साथ साथ, क्योंकि हिस्टिडीन क्या है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज. आप यहां पर ये चीज ध्यान रखने की है कि जो आयोनिक बॉन्ड है उसकी वजह से बॉन्डिंग नहीं हो रही. हाइड्रोजन बॉन्ड वाली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सीरीन है दैट इज ऑल्सो हैविंग अ पोलर ग्रुप. सीरीन के पास एक पोलर ग्रुप होता है. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, दिस हिस्टिडीन bonds with serine and forms the hydrogen bond. इस पोलर ग्रुप की वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. और ये जो एस्पार्टेट है ये भी हिस्टिडीन से बॉन्ड बनाता है. और यहां पर इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पार्शियल शेयरिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज होती है. एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस. यहां से ये नेगेटिव चार्ज यहां पास होता है एंड दिस नेगेटिव चार्ज देन पासेस टू दिस. और जिसकी वजह से हमारा जो सीरीन है ये बन जाता है नेगेटिव. एंड व्हेन इट बिकम्स नेगेटिव तो हमारे पास क्वेश्चंस. सीरीन जब हमारे पास नेगेटिव हो गया तो ये बन जाता है एसिडिक. एंड एज द क्वेश्चन इज कि हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक फोल्डिंग है, वो कैसे इसकी एक्टिविटी में हेल्प करती है, यहां पर आंसर आता है व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटालिटिक ट्रायड, thus the serine becomes negative, and when serine gets the negative charge it becomes acidic in nature. And then what happens, it is able to make the nucleophilic attack on the substrate, nucleophilic attack on the carbon of substrate. ये हमारा एंजाइम है. इस एक्टिव साइट में, ये एक्टिव साइट होगी जहां पर हमारा सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा, और सबस्ट्रेट भी हमारा प्रोटीन होगा. तो this is amino acid 1, 2 and
फर्दर, तो यहाँ पर जो भी कार्बोनिल कार्बन होगा किसका, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स का, क्योंकि हमारा कीमोट्रिप्सिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को ही अटैक करता है। दिस इज स्पेसिफिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि हमारा जो कीमोट्रिप्सिन है वो कहाँ पर अटैक करता है। तो इस प्रोटीन चेन में जहां पर भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड होगा, ये सीरीन उसको जाकर अटैक करेगा और वहां से क्लीवेज कर देगा। तो यहाँ पर अगर ये प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होगी, हमारा कीमोट्रिप्सिन एक्टिव नहीं हो सकता। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट फोल्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द functioning of the chymotrypsin to act as a proteolytic activity. And when you have to write the question, answer of this question, then you have to explain the diagram so that the examiner could understand that serine becomes negative, and when serine becomes negative, it gets the acidic nature, and then it is responsible to carry the nucleophilic attack and thus carrying the reaction. So this is all about this, and this question is very important. It is of 5 marks. कीमोट्रिप्सिन जनरली 5 मार्क्स में आता है। तो यहाँ पर हमने कीमोट्रिप्सिन का प्रिकर्सर जो कीमोट्रिप्सिनोजन है, जिसको जाइमोजन कहा जाता है, वो पढ़ा, कैसे वो कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इन सिटू एक्टिवेशन एंड द प्रोसेस। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the relationship between specific activity and the purity of protein? Actually this topic is deleted for this year, but यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है जो हमें क्लियर होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला है। जो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब है एक जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है, अपनी कितनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। मीन्स इफ देयर इज अ कीमोट्रिप्सिन, तो ये कितने प्रोटीन्स को कितनी देर में क्लीव कर सकता है। सो इफ द प्रोटीन इज प्योर, देन इट शोज द हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो विद द प्योरिटी ऑफ द प्रोटीन, द स्पेसिफिक एक्टिविटी increases. So now the next question, explain with an example how proteins can be engineered to improve their properties. It is again an important question कि हम प्रोटीन्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, एंड दिस इज टर्म्ड एज द प्रोटीन इंजीनियरिंग। हमारे चैप्टर का नाम है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग, और जब प्रोटीन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, यहां पर है मॉडिफिकेशंस। जो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन था, उसमें हमने कुछ चेंजेस करके उसको इंजीनियर कर दिया, चेंज किया, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज प्रोटीन इंजीनियरिंग। इसका जो एग्जाम्पल है, दैट इज an enzyme which is isolated from a bacteria known as Bacillus subtilis. Bacillus subtilis तो बैक्टीरिया का नाम है, और इससे जो एंजाइम मिलता है वो है सबटिलिजिन। इसमें क्या हम लिख सकते हैं, वो है सबटिलिजिन is an enzyme which also works on the concept of acidic serine। जो अभी हमने पढ़ा है कि सीरीन जो होती है कैटालिटिक ट्राइड में, ट्राइड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 3 अमाइनो एसिड्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहां पर भी एसिडिक सीरीन होती है। एंड दिस सबटिलिजिन इज अ इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द डिटर्जेंट इंडस्ट्री, बट a problem is seen while using this enzyme in the detergent industry, that this enzyme loses its activity in bleach condition। अब देखा जाए तो जो हमारा डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, वहां तो ब्लीच यूज होगी ही होगी, और अगर ये एंजाइम हमारा अपनी एक्टिविटी काफी कम कर देता है, लूज कर देता है ब्लीच कंडीशन में, तो ये एंजाइम हमारे लिए
बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता। देन साइंटिस्ट हैव फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दिस एंड दे हैव फाउंड आउट दैट इस प्रोटीन की चेन में कैटालिटिक ट्रायड को नहीं छेड़ना है। इसके अलावा एक 222 पोजीशन है अमाइनो एसिड की, उस 222 पोजीशन पे मिथियोनिन एक अमाइनो एसिड है। 222 पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है? दैट इज मिथियोनिन। दिस इज द कल्प्रिट। एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज दिस एंजाइम इन द ब्लीच इंडस्ट्री, पूरे प्रोटीन पे फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये जो मिथियोनिन है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इट गेट ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इसकी एक्टिविटी खराब हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है, जब ये एक्टिव साइट में इन्वॉल्व ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? यस, ये एक्टिव साइट में इन्वॉल्व नहीं है, बट हमने ये पढ़ा कि अगर कैटालिटिक ट्रायड प्रॉपरली नहीं बनेगा तो हमारा एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, और ये मिथियोनिन उस कैटालिटिक ट्रायड को बनने में हेल्प करता है। तो व्हेन वी हैव टू आंसर, वी विल जस्ट राइट दैट in the what they have find that in the bleach industries, the amino acid methionine, which is at the 222 position, gets inactivated, gets oxidized, and therefore this protein will not work properly. Now अब साइंटिस्ट क्या करेंगे? इस मिथियोनिन को रिप्लेस करेंगे, और मिथियोनिन को जब वो रिप्लेस करेंगे तो कैसे रिप्लेस कर रहे हैं वो उसको? बाय इंजीनियरिंग, बाय म्यूटेशंस और समथिंग एल्स। तो यहां पर इंजीनियरिंग के वक्त वो क्या करते हैं? इस 222 मिथियोनिन को रिप्लेस करते हैं बाय डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। अलग अलग अमाइनो एसिड से रिप्लेस किया। हमारे पास इसके अलावा 19 अमाइनो एसिड्स है, सबको यहाँ पर अटैच करके देखा कि सिस्टीन से एक्टिविटी कितनी आती है, एलानिन से कितनी आती है, एंड फाइनली दे हैव फाउंड दैट अगर हम मिथियोनिन की जगह सिस्टीन डाल दें तो हमें 138% एक्टिविटी मिलेगी, और जबकि अगर हम यहाँ पर एलानिन डालते हैं तो हमें 53% मिलती है, और मिथियोनिन तो नेचुरल है ही, तो 100% है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज। एक वर्ड आता है वाइल्ड फॉर्म ऑफ द एंजाइम। वाइल्ड फॉर्म जब भी वर्ड आएगा मीन्स इट इज द नेचुरल एंजाइम, और जब नेचुरल एंजाइम हमारे पास है तो क्या होगा? उसमें तो मिथियोनिन है, मीन्स जो नेचर में वो एक्टिव है। बट जब हमने इस मिथियोनिन को सिस्टीन से रिप्लेस किया तो इसकी नेचुरल एक्टिविटी बढ़ गई, और एलानिन से रिप्लेस किया तो 153, और सभी अमाइनो एसिड्स की इससे कम है। बट साइंटिस्ट ने यूज किया मिथियोनिन की जगह एलानिन को। दे हैव रिप्लेस्ड methionine by alanine with alanine. Now the question arises, why alanine, why not cysteine? Actually cysteine is also an amino acid which have sulfur in it. तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? मिथियोनिन के पास सल्फर प्रेजेंट था, इसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज हो गया। सिमिलरली होगा क्या? सिस्टीन के पास भी सल्फर प्रेजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमने किससे रिप्लेस करना है? एलानिन से, और जब हम एलानिन से रिप्लेस करेंगे तो हमारी जो एक्टिविटी है वो हमें बेटर मिलेगी इन द ब्लीच कंडीशंस। सो व्हाइल राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन we will just write that this can be proved with the help of an example, that is subtilisin, which we naturally isolate from Bacillus subtilis, and that is used in the detergent industry. But this protein gets inactivated in bleach condition, up to 90% of the activity is lost, and the scientists have find out the problem. The 222 methionine gets oxidized, and therefore protein doesn't work properly,
and then they replace this methionine with the alanine and the problem is solved. So the property of this particular enzyme gets improved. And the last question for today is the why humulin is considered as a better than pig insulin for the treatment of diabetes. हम ह्यूमुलिन को क्यों बेटर मानते हैं जब हम स्लॉटर हाउसेस से इंसुलिन आइसोलेट करते थे उसके कंपैरिजन में. ह्यूमुलिन क्या है? इट इज अ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन और पिग इंसुलिन वो है जो नेचुरल है, बट हम इसको आइसोलेट कर रहे हैं फ्रॉम द स्लॉटर्ड हाउसेस. मरे हुए जानवरों से हम इसको आइसोलेट करते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाई इट इज बेटर, व्हाई इट इज नॉट बेटर. तो यहां पर दो मेन आंसर्स बनते हैं. सबसे पहली बात, यहां पर ब्लड बॉर्न एंटीजन का खतरा नहीं है. यहां पर ब्लड बॉर्न एंटीजन बॉडी के अंदर जा सकता है. ब्लड बॉर्न एंटीजन का क्या मतलब है? अगर इस पिग में कोई डिजीज है और आइसोलेट करते वक्त इंसुलिन उस पर्टिकुलर डिजीज का एंटीजन ट्रांसफर हो गया इंसुलिन के थ्रू टू द पेशेंट, देन इट इज अ प्रॉब्लम. दूसरा एक है कि दिस इज अ टीडियस मेथड. बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, मुश्किल मेथड है. अमाउंट इज लो. कंपैरेटिवली इजी, अब तो बहुत ही इजी हो गया. एंड अमाउंट हम जितना हाई बनाना चाहे उतना बना सकते हैं. एंड थर्ड इज द एक्टिविटी. जो हमारे पास पिग इंसुलिन है दैट गेट्स एक्टिव इन अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स इन द बॉडी. में जब हम इंजेक्शन देंगे तो उसके 3 घंटे बाद वो जाकर अपना रिस्पॉन्स शो करेगा. जबकि ह्यूमुलिन जो है, जो रिकॉम्बिनेंट है, दैट कैन गेट एक्टिवेटेड ओनली इन द 15 minutes. So these all are for today. In the next video we will discuss more questions. Thank you.